Very good morning to you all. Well, we are pursuing with our chapter that is structure of atom. So our today's topic is distribution of electrons in energy shells of an atom. Students, till now what we have done, basically we have done कि what is atomic Bohr atomic theory, है ना? आप सबने पढ़ा होगा what is Bohr atomic theory. The electrons revolve around the nucleus inside an atom in discrete circular orbit. ठीक है कि suppose we are having an atom or we are having nucleus of that atom, so the electrons are revolving in certain discrete orbits. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, हमने ये पढ़ा. तो क्या इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कि सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर 3 आ गए, फिर यहाँ पर 5 आ गए, या यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, क्या कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न है उन इलेक्ट्रॉन्स का प्लेसमेंट का उन डिफरेंट एनर्जी शेल्स के अंदर, या आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली किसी भी मैनर में आपके उन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, उन डिफरेंट एनर्जी शेल्स में मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो देयर इज अ स्पेसिफिक रूल दैट इज गिवन बाय बोहर एंड बरी एंड इट इज आल्सो मेंशन्ड एज बोहर-बरी रूल. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी that rule today, and we are going to study the arrangement of electron in a particular orbit that rule suggested by Bohr and Bari. So basically this rule consists of 3 points, or you can say there are 3 rules basically of that is mentioned in under Bohr-Bari rule. So our first point is the maximum number of electrons present in a shell is given by a formula 2n square. कि एक ऑर्बिट में ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इस फर्स्ट ऑर्बिट में या इस सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए. ठीक है, ये कौन बताता है, हमारा कौन सा रूल, दैट इज बोहर रूल, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a given shell, or a shell is given by a formula 2n square. तो यहाँ पर n क्या है, what is n over here? n is orbit number, or you can say the energy shell in which electron is placed. Suppose ये first shell है, हमारा first orbit है, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. ठीक है, तो ये second orbit है हमारा. ठीक है, this is nucleus, ये second orbit है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. ठीक है, So we have studied the rule basically, that is 2n square rule. तो n क्या था, what is n, कि कौन से शेल में हमने प्लेस किया है इलेक्ट्रॉन को. Suppose this is a nucleus of an atom and this first shell and this is the second shell. Clear? So we have to place, basically this is first shell, so this is here for this shell n is equal to 1. So n is equal to 1. So in first shell, according to this formula 2n square, I have put it 1 over here. So 2 into 1 square, that is 2 into 1 is equal to 2. So in first shell, the maximum number of electrons that can be accommodated is 2. Okay. Now in second shell, that is termed as L. Now here n is equal to 2. Then this is second shell. For this shell, n is equal to 2. Clear? So here, when I put it the value of n over here, 2 into 2 square that is 4. So 2 into 4 basically it is 8. So in the second shell the maximum number of electrons that can be accommodated is 8. Now third shell, that is M shell. ठीक है, suppose we are having third shell over here, so that will be M shell. For third shell, because it is third shell, so n is equal to 3. And when I put the formula, when I put the value of n in this, so 2 into 3 square, what is 3 square, but basically it is 9. So 9 into 2 is equal to 18. So the maximum number of electrons that can be placed in the third shell, that is 18. Now the fourth shell, because it is fourth shell, so n is equal to 4. Suppose we are having another fourth shell over here. ठीक है, so now 2 into n square, when I put the value of n over here in this formula, so 4 square, what is 4 square beta? That is 16. So 16 into 2, that is equal to 32. So the maximum number of electrons that can be placed in the last shell, or that is in the end shell, that is 32. I think it is clear to you. In first shell, the maximum number of electrons that can be accommodated is 2.
In second shell, the maximum number of electrons that can be accommodated is 8. M shell, maximum number of electrons that can be accommodated is 18. And in N shell, the maximum number of electrons that can be accommodated is 32. Now, we are going to study our next Bohr-Bury rule. So, next rule is the maximum number of electrons that can be occupied in an outermost shell is 8. Outermost shell. Outermost shell में maximum कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8. We will not consider here of the K shell because K shell the maximum number of electron can be 2. ठीक है? अब ऑलरेडी हमने रूल में पढ़ा था बोहर-बरी रूल में कि वहां पर n की वैल्यू 1 फर्स्ट शेल है हमारी, तो वहां पर ड्यूप्लेट रूल फॉलो होता है. वहां पर हमारे सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम इट इज 2. बट नेक्स्ट शेल व्हाट वी हैव स्टडीड इन K शेल 8. बट मैम इन M शेल तो आपने बताया कि 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. फिर why you are saying कि the maximum number of electrons that can be occupied in the outermost shell is 8? Yes, ये आपका रूल बेटे, आप इसको ध्यान से पढ़ो. The maximum number of electrons that can be occupied in an outermost shell. मैं outermost shell की बात कर रही हूँ, ठीक है? This can be followed if ये वाला रूल हमारा कि M shell की वैल्यू is 18. This can be followed if M shell is not the last shell. ठीक है? ये आपका concept you are going to study in higher classes in class 11 about orbit and orbitals. ठीक है? तो यहाँ पर हम इन डिटेल में उसको नहीं पढ़ेंगे. आप सिर्फ इतना समझेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर M shell को मैं लास्ट शेल मान रही हूँ, आउटर मोस्ट शेल मान रही हूँ, तो वहां पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कंसीडर करने? 8. सिमिलरली द रूल फॉलोज फॉर द N शेल ऑल्सो. वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़े थे, इट इज 32. ठीक है? बट इफ N shell is again considered as the last shell, here also we will consider the maximum number of electrons in that shell that can be occupied is 8 if it is the outermost one. ठीक है? outermost shell में हम maximum number of electron कितने प्लेस करेंगे? 8. So this is all about the second rule. Now we are going to study the third rule. Now the third rule is the electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. That is, the shells are filled in a stepwise manner. क्या बताना चाह रहा है ये रूल बेसिकली बेटे आपको? Suppose आपकी we are taking an example of oxygen. ठीक है? Oxygen, the atomic number is 8. तो यहाँ पर हम क्या प्लेसमेंट करेंगे इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? What is electronic configuration? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब हमने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे प्लेस किया है शेल्स के अंदर. दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो नाउ इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज EC, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. नाउ इट इज K शेल, L, M और N. तो फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, हमने 2 प्लेस कर दिए. नाउ द सेकंड शेल, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसमें? 6. तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं यहाँ 1 कर दूं और यहाँ मैं 7 कर दूं, या मैं सिंपली उठा के किसी एक को फिल कर देती हूँ ना? एल शेल फिल हो गई, ये तो स्टेबल ही है. एल शेल फिल है तो नहीं. आई कांट डू दिस. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. ठीक है? So that is the shells are filled in a stepwise manner. हमें सबसे पहले फर्स्ट शेल को कंप्लीटली फिल करना है. जैसे ही फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगी, हम रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स को किसमें डालेंगे? सेकंड शेल. Now how many electrons are left? Only 6 electrons are left over here. So can I write 4 over here or 2 over here? No. Why? Because first I have to fill this shell. तो यहाँ पर तो मैम लेकिन फिर भी 6 आया ना, फिल तो ये अभी भी नहीं हुआ. ठीक है? इससे ज्यादा तो हम फिल कर ही नहीं सकते ना. ठीक है? ये तो इसका एटॉमिक नंबर ही इतना है. तो दैट मीन्स इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर से चाहिए होंगे, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को उठा के लूज करेगा, तभी ये स्टेबल होगा. ठीक है? तो यही पढ़ा है हमने. तो यहाँ पर इस केस में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या रखेंगे? 2 6. यहाँ पर हम ना 8 लिख सकते हैं, यहाँ इसको हम फिल करे बिना छोड़ नहीं सकते. हमें सबसे पहले फर्स्ट शेल को फिल करना है, देन वी हैव टू मूव ऑन टू द सेकंड शेल एंड रेस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके बचेंगे हम सेकंड शेल में प्लेस करेंगे. सपोज आई हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मान लो मेरे पास 14 एटॉमिक नंबर है. दिस इज एटॉमिक नंबर फॉर सिलिकॉन. ठीक है? ये सिलिकॉन का आपका एटॉमिक नंबर है 14. सो नाउ हियर इट इज फर्स्ट शेल में कितने आ गए? 2.
ठीक है। सेकंड शेल में कितने आ गए मैम? मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो आपने 8 फिल कर दिया ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। तो नेक्स्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे? 4। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट अस मेक यूज ऑफ ऑल दिस रूल्स that we have learned in placing electrons of certain elements. Now here we will see how electrons are placed in certain elements. Like we are taking example of hydrogen. Atomic number is 1. Electronic configuration is again, हमने फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पुट किया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1. सेकेंड we are taking helium. Atomic number is 2. हमने फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? के शेल में हमने कितने प्लेस किए? 2. ठीक है। नाउ थर्ड वी आर टेकिंग लिथियम. लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? जितना एटॉमिक नंबर होता है बेटे हमारे उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 3. ठीक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट शेल में 3 में से हमने कितने प्लेस कर दिए? यहाँ पर 2. हाउ मेनी आर लेफ्ट? 1. सो इन के शेल हाउ मेनी वी हैव प्लेस्ड? We have placed 2, and in L shell but we have placed 1. The electron configuration is 2, 1. Now in fourth we are taking case of beryllium. In first shell number of electrons are 4. In first shell we have placed 2 electrons. ठीक है. Now how many electrons are left? 2 electrons. Now in second shell we have placed again 2 electrons. ठीक है. Similarly we are taking example of boron. Here number of electrons will be 5 as the atomic number is 5. So in first shell what we have taken? In first shell we have taken 2. How many electrons are left? 3. So in second shell basically 3 electrons are placed, so that electronic configuration will be 2, 3. इसी तरीके से आप बाकी इलेक्ट्रॉन्स में भी, बाकी एटम्स में भी हम क्या प्लेस करेंगे? किसको? इलेक्ट्रॉन्स को इसी तरीके से प्लेस किया जाएगा. Suppose I am taking example. Suppose I am taking example of sodium. ठीक है. So now in this case atomic number is 11. So 11 atomic number is there, so number of electrons will be again 11. So in first shell, K shell I have placed 2 electrons. Okay, K shell में 2 electron place कर दिए. In second shell I have placed 8 electron आ सकते हैं ना सेकंड में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है. 8 शेल में कितने के शेल में कितने कर दिए हमने? 8. नाउ इन M शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट ओवर हियर? नाउ 11 है ना हमारे पास. टोटल 10 वी हैव प्लेस्ड. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट? ओनली 1. ठीक है. नाउ इन थर्ड शेल दैट इज M शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड? ओनली 1. ठीक है. नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 8, 1. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ क्लोरीन. ठीक है. तो यहाँ पर द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन विल बी 17. नाउ KLM. नाउ इन फर्स्ट शेल, इन K शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्लेस्ड? मैक्सिमम इट कैन प्लेस 2. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2. इन सेकेंड शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी प्लेस्ड? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So in M shell only 8 electron can be placed. Now how many electrons are left? 2, 8, that is 10. Now 7 electrons are left. So next shell we are taking M shell. In M shell again we will place 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it is 7. ठीक है. So इसी तरीके से मैं आपको अभी बहुत सारे आपको एटॉमिक नंबर 20 तक एटॉमिक नंबर मैं भी आपको लिख के दूंगी. ठीक है. आपको क्या करना है? 20 तक एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद मुझे करके देंगे, और वो एक्टिविटी आप मुझे दैट यू हैव टू सेंड टू मी. तो फॉर शोइंग दिस बेसिकली आई हैव यूज सम आर्ट इंटीग्रेशन टू. है ना, घर पे बैठे हैं तो मन करता है कि कुछ आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी भी करें. ठीक है. तो इसीलिए एक आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी भी किया है मैंने, कोशिश किया है आपके लिए. आप भी उसको परफॉर्म करके देखोगे. Here you can see I have taken first example, that is hydrogen. You have to write the symbol to, write the atomic number,
राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक KLMN। ये आप कैसे करोगे, पहले आपने एक न्यूक्लियस बनाना है, आपने फर्स्ट शेल बनानी है। देखो हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक नंबर, एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको प्लेस कर दिया। ये स्टिकर्स मार्केट में ना इजीली अवेलेबल है, ठीक है। यू कैन यूज इवन वो जो घर पे बिंदी होती है ना मम्मी की, अगर मम्मी के बिंदी के पत्ते ऐसे एक्स्ट्रा पड़े, अगर मम्मी उनको यूज नहीं कर रही तो मम्मी से पूछ के लेना। ऐसे नहीं कि मम्मी की बिंदियाँ वेस्ट करनी है आपने, ठीक है। या फिर आप मार्केट से भी ला सकते हो, सिंपल, दैट इज वेरी मतलब लो कॉस्ट आइटम, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ स्टिकर और यू कैन यूज एनीथिंग टू प्लेस दिस काइंड ऑफ। नाउ मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया, ठीक है। तो K शेल में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस किए, 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी तो फर्स्ट शेल भी यही है, इसकी तो लास्ट शेल भी यही है, तो हमारे इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी बेसिकली टू सेटिस्फाई और you can say to fulfill the orbit, लास्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये K शेल है, K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस होते हैं, 2। तो यहाँ पर इसको अपने आप को फुलफिल करने के लिए K शेल को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1। तो हाइड्रोजन के केस में दोनों पॉसिबिलिटी है, कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कंप्लीटली इट विल बिकम फ्री, और समटाइम इट्स टेक 2 इलेक्ट्रॉन, इट टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड एंड so to complete its octet, अपनी that is not octet basically, that is duplet, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। तो इसको हम, इसकी हाइड्रोजन की क्या होती है, ड्यूप्लेट, जिसमें लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सपोज आई एम टेकिंग L शेल ना, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल L का लूंगी तो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट। यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसका ड्यूप्लेट, ठीक है। तो इसके ड्यूप्लेट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बाहर से लेके तो वो कंप्लीट हो गया। सो हेयर वैलेंसी विल बी 1, या तो 1 लेगा या 1 लूज करेगा। चार्ज, अगर ये बाहर से बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अपने ऊपर एक उधार चढ़ा रहा है ना, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अगर ये लूज कर रहा है तो एक अच्छा दान दे रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटे, पॉजिटिव चार्ज। नाउ अगेन वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। हेयर अगेन यू कैन सी आई हैव टेकन बेरिलियम, आई हैव रिटन सिंबल ऑल्सो, आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है, सिंबल दैट इज Be, एटॉमिक नंबर इज 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 व्हाई इट इज 2 4 एटॉमिक नंबर था, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मैम 4। तो हमने फर्स्ट शेल, पहले हमने उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट किया। फर्स्ट शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2। दिस इज द सेकंड शेल, ठीक है। सेकंड शेल में अब 2 हमने फर्स्ट में फिल करे, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट, ओनली 2। तो सेकंड शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए, 2, ठीक है। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल, इसकी लास्ट शेल कौन सी है, L शेल। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और 2। तो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड वैलेंसी, अब या तो ये बाहर से अपनी L शेल को कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, ठीक है, या फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और अपनी ड्यूप्लेट के साथ खुश रहे, ठीक है। अब वो बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेना, उसमें बहुत सारी एनर्जीज को स्पेंड करनी पड़ेगी, तो दैट इज डिफिकल्ट फॉर बेरिलियम। सो दैट्स व्हाई इट लूजेस दिस 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स by attaining that duplet it will become free, ठीक है। बेसिकली इट विल बिकम स्टेबल। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, तो जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हम लूज करते हैं, गेन करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, वैलेंसी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी विल बी हियर 2। एंड व्हाट इज द चार्ज, बिकॉज इसने लूज किया इन 2 इलेक्ट्रॉन का ना, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्या हुआ, इसने पॉजिटिव काम किया, दान में दे दिया किसी को, तो इट विल बिकम +2, ठीक है। हेयर अगेन वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, मैंने यहाँ पर पोटेशियम लिया, देखो पोटेशियम को मैंने थोड़ा सा कलरफुल बना दिया आपके लिए, है ना, ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। अब देखो पोटेशियम सिंबल इज K, दिख रहा है आपको, एटॉमिक नंबर इज 19, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 19, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ पोटेशियम, फर्स्ट शेल दैट इज K शेल, कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस किए हमने, 2। सेकेंड शेल दैट इज L शेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैम 8 प्लेस कर दिए, ठीक है। M शेल 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से M शेल में कितने प्लेस कर दिए मैम, 8, तो 2 8 दैट इज 10 एंड +8 दैट इज 18। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन इज अगेन लेफ्ट,
तो लास्ट शेल दैट इज एन शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए 1. सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 2 8 8 1. ठीक है, यहाँ पर देखो लास्ट शेल में हमने कितना इलेक्ट्रॉन प्लेस किया था 1. नाउ व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1. व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी की क्या होगी कि ये जिस कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए. इस केस में ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना. तो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और लूज कर रहा है, दान में दे रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने आपके लिए बनाया है. इसमें देखो फर्स्ट शेल, ये न्यूक्लियस है इसका. ठीक है, यहाँ मैं लिखना भूल गई, दिस न्यूक्लियस बेसिकली. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं मैम? 2. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे K2. एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 1 2 3. तो एल शेल में कितने आ जाएंगे? 3 2 3, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5. यानी एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 5. तो 5 एटॉमिक नंबर बेटे किसका होता है मैम? बोरोन का. तो यहाँ पर आप एलिमेंट नेम लिखेंगे बोरोन, सिंबल इज कैपिटल B. ठीक है, आप उसका एटॉमिक नंबर दैट इज 5, हमें इससे पता चल गया. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे K में 2 और L में लिखेंगे 3. सिमिलरली आप उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, वैलेंसी एंड चार्ज. ठीक है, तो ये आपके मैंने बेसिकली 2 क्वेश्चन की फॉर्म में बनाए हैं. अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको फर्स्ट शेल में कितने देख रहे हैं? 2. सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6. तो 2 + 6 कितना हो गया? 8. तो 8 यानी कि एटॉमिक नंबर 8. एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है? दैट इज ऑक्सीजन. ठीक है, तो सिंबल फॉर ऑक्सीजन इज O. एटॉमिक नंबर इज 8. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैम 2 6. वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 6. वैलेंसी, अब इसको अपनी लास्ट शेल फुल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए मैम? 2. तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2. चार्ज, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव, अपने ऊपर उधार चढ़ा रहा है क्योंकि, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? -2. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, नाउ प्लीज आप ये एक्टिविटी जरूर परफॉर्म करके देखेंगे और मुझे सेंड करेंगे.